بلیٹن میں سب سے پہلے بات اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی، جہاں پر آگ کیسے لگی 39 گھنٹے بعد بھی پتہ نہ چل سکا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے CDA فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ کمیٹی نے فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے سانحے سے متعلق تمام ریکارڈ اور دستاویزات حاصل کر لی۔ نااہلی، غیر ذمہ داری یا بد انتظامی، پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ عملہ نرسری میں تھا یا نہیں؟ کس نے غفلت برتی؟ کسی سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار نے ARY سے گفتگو میں بتایا وزیر صحت اور پیمز سربراہ کے بیانات میں تضاد ہے۔ منسٹر صاحب ایک بات کہہ رہا ہے، ڈاکٹر دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے کہا ایئر کنڈیشن جو اوپر لگا ہوا تھا اس سے ایک اسپارک نیچے گرا۔ ED نے کہا کہ وہ جو AC ہے جس سے اسپارک نکلا تھا وہ AC کئی عرصے سے وہ AC خراب ہے۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر تھی، اسی نے کہا یہ AC سے اسپارک نہیں ہوا ہے، ایک وہاں وائروں کا گچھا باہر پڑا تھا اس سے ایک اسپارک ہوا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی مہیش کمار کا کہنا تھا کہ پوچھ گچھ کے دوران نرسز کنفیوز تھیں، لگا انہیں جواب سکھائے گئے ہیں۔ نرسز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے، ہم نے اسپارک گرتے نہیں دیکھا۔ 3-4 نرسوں سے ہم نے انٹرویو لیا، ان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو وہ سکھایا گیا تھا اس حوالے سے۔ اسپتال کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو میں اراکین نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور پیمز سربراہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ وہاں پہ لوگوں کی یا ڈاکٹر کی اسٹاف نہ تو اس وقت کوئی ڈیوٹی پہ نہیں تھا۔ باقی جواب یہ ہے کہ ED پیمز اور منسٹر صاحب دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت اسپتال کے 30 سے زائد ملازموں کے بیان ریکارڈ کیے، نیورٹن نرسری کا معائنہ کیا اور CCTV دیکھی۔ کمیٹی نے اسپتال عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ کمیٹی نے CDA فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا، فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف قلمبند کیے۔ انتظامیہ نے 3 سینئر پروفیسرز پر مشتمل نئی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پیر کو اجلاس بلا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دیا یا نہیں، تصدیق یا تردید نہیں کروں گا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا 24 گھنٹے انتظار کر لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا خود کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا کہہ دیا ہے، جب بلایا جائے گا پیش ہو جاؤں گا۔ یہ بہت معلومات کی بنیاد پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ تو پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، آپ تردید کر دیں اس کی۔ میں آپ کی اس بات پہ نہ تردید کر رہا ہوں، نہ آپ کی اس بات کو میں مان رہا ہوں۔ میں اس والی بات پہ میں اپنا استحقاق استعمال کروں گا آپ کے سوال کے جواب نہ دینے۔ ایک کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے بنائی ہے، شاہد صاحب اس کو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیٹی ہے اور اس کو سب لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کو نے اگر مجھے بلا کر پوچھنا ہو تو میں بھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس کمیٹی کے سامنے سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ ان کے پاس تمام ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں، ان کے پاس ہیومن ایویڈنسز بھی موجود ہیں۔ پیمز اسپتال کی آگ میں جلنے والے بچوں کے گھروں میں صف ماتم، لخت جگر کو کھونے والے غمزدہ والد نے ARY نیوز سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ جہاں بھاگ جڑواں بچیوں کے ماموں کا کہنا ہے کہ بہن ICU میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں گیا کہ قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ انہوں نے زندہ جہاں پہ جلا دی ہے۔ میری بیٹی تو شہید ہو گئی ہے، آنے والے کسی بچے کے ساتھ کم از کم یہ صدمہ کوئی باپ اور برداشت نہ کرے۔ سارے عملہ بھاگ رہے تھے، نہ مجھ کو چھوڑ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو بچائے، اور خود ہی اسے بھاگ رہے تھے۔ یہ ہیں ان ننھے چراغوں کے اہل خانہ جنہیں پیمز کی ہولناک آگ نے بجھا دیا۔ جگر کھونے والے غمزدہ والد نے ARY سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ میری بیٹی کو انہوں نے زندہ جہاں پہ جلا دیا ہے، یہ صدمہ کوئی باپ اور برداشت نہ کرے، کسی ماں کو اللہ نہ کرے کبھی دیکھنے۔ فنڈز بھی ملتے ہیں، اس کے باوجود کوئی ایگزٹ نہیں ہے ایمرجنسی، جو ہے نا بچوں کو ریسکیو کیا شیشے توڑ کے۔ جو لوگ یہاں پہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں اس کے باوجود وہ اپنا کام نہیں کر رہے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اور انہیں کرنی چاہیے۔ متاثرہ شخص نے بتایا اتنے ہولناک سانحے کے بعد بھی انتظامیہ کا رویہ نہ بدلا۔ جنازہ ریسیو کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، بہت نرسری سے اوپر ICU میں نیچے تک کسی ڈاکٹر نے، کسی انتظامیہ کے بندے نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ یار ہماری بیٹی کہاں ہے۔ المناک سانحے میں زندگی کی بازی ہارنے والی جڑواں بچیوں کے گھر میں سوگ ہے۔ ماموں نے بتایا کہ بہن ICU میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں
कि क्या कयामत बीत चुकी। बहन की तबीयत ज़रा ख़राब है, इस वजह से हमने इसको बताया भी नहीं है। बच्चे के वालिदैन हैं, वो तड़प रहे थे। कोशिश में था कि मैं उसको निकालूं, लेकिन निकालने की कोई सूरत हाल नहीं था। 1 घंटे बाद वो रेस्क्यू टीम आई। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि आग लगने के बाद अमला भाग निकला और हमें भी बच्चों को बचाने के लिए जाने से रोक दिया, वरना हम अपनी मदद आग के तहत मासूम कलियों को निकाल लेते। लवाहिकीन सवाल कर रहे हैं कि क्या जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा या फिर मामला सर्द खाने की नजर हो जाएगा। हुकूमत का सानह पिम्स में जहां बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तर्जुमान वफाकी हुकूमत का कहना है मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर के शरीक हैं। मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं, बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते, ताहम गमजदा खानदानों की मुश्किलात कम करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। पिम्स वाक़े की कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारल का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। हेल्थ से उन्हें फौरी तौर पे खुदे से मुअत्तल कर स्पेशल इंक्वायरी टीम कायम की गई है, जिसने 48 घंटे में इनिशियल रिपोर्ट देनी है। वो आज शाम या कल किसी टाइम पे मिल जाएगी। ज्यादा जरूरी बात यह है वो है कि जिम्मेदारी का तयन करना। क्या इस हादसे के होने के बावजूद इंसानी जानों को बचाया जा सकता था, और अगर था तो कोताही कहाँ पे हुई? इंसानी जान की पहली बात तो ये कोई कॉम्पनसेशन होती। मुस्तफा कमाल साहब ने कल अपने आप को इसलिए पेश किया, उन्होंने खुद ये ऑफर कर रखी है कि अगर इस तरह की गफलत साबित होती है जो कनेक्ट होती है हायर लेवल पे भी, तो वो लेकिन सर इंक्वायरी सानेह पिम्स के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शुरा ने कहा हुकूमती कमेटी को नहीं मानते, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। झुलसे हुए मासूम बच्चों को देखकर रात भर नींद नहीं आई। बच्चों का इस तरह जल जाना अस्पताल इंतजामिया की नाअहली है। आपकी मार नहीं बर्दाश्त कर सकती माँ, और यहाँ पे बच्चे जिंदा जल के मर गए। इंतजामिया की बड़ी गफलत है, और उसमें एक चीज जो कि ये सिस्टम है कि इन लोगों को 12-12 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, कि जो लोग 8 बजे ड्यूटी पे आए थे वो लोग तो 4 बजे उनकी तो बस हो गई होगी, वो मेरे ख्याल में कहीं किसी रूम में जाके वो लेट के सो गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आग भड़के और किसी को पता ना चले और इतनी आग भड़क उठे कि उसमें बच्चे जो है कोयला बन जाए। इस कमेटी को कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार। इस कमेटी की तश्कील में बहुत से मसाइल हैं। आप एक जुडिशल कमीशन करें मुकर्रर, और उसमें हेल्थ मैनेजमेंट के माहिरीन को होना चाहिए। ये इंसिडेंट नहीं है, ये सिस्टम की तबाही का नो है। इसके अंदर जो कल्प्रेट्स इन्वॉल्व हैं, अभी तक उनके बारे में सिवाय सिर्फ एक झूठी JIT बनाने के कोई लॉलीपॉप नहीं दिया गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की हलाकत। फायर सेफ्टी इंतजामात पर सवालात उठ गए। इस्लामाबाद के 44 अस्पतालों को पहले ही फायर एंड लाइफ सेफ्टी नोटिस जारी किए जा चुके थे। MCI डिजास्टर मैनेजमेंट की बार बार वार्निंग के बावजूद अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर अमल दरामद ना हो सका। CDA का कैपिटल अस्पताल, पोली क्लिनिक और दीगर इदारे भी फायर सेफ्टी इंतजामात पूरे ना कर सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट ने नोटिस जारी किए थे। नोटिस में फायर प्रिवेंटिव, प्रोटेक्शन और लाइफ सेफ्टी आलात की तनसीब पर जोर दिया गया था। कैपिटल अस्पताल को फायर सेफ्टी फिटनेस, हैजर्ड अलर्ट और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। MCI के मुताबिक 2014 से 2023 तक फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक मुताद्दिद बार आगाह किया गया। फायर सेफ्टी के लिए लाजमी फिटनेस सर्टिफिकेट्स और NOC हासिल करने की भी हिदायत की गई। फायर सेफ्टी प्लान्स की मंजूरी और तकमील का फायर सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दिया गया था। फायर सेफ्टी प्लान्स PAC से मंजूर शुदा MEP कंसल्टेंट से वेट कराने की हिदायत की गई। फायर एंड रेस्क्यू माहिरीन और PEC रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर से खिदमात लेने की हिदायत की गई। कैपिटल अस्पताल में बाकायदा फायर ड्रिल्स और इमरजेंसी तैयारों की मशकें कराने का भी हुक्म दिया गया था। कैपिटल अस्पताल इंतजामिया को 3 माह के अंदर जरूरी इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई थी। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 बच्चों की मौत के बाद हलचल मच गई। वजीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटाया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को इजाफी चार्ज दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद कौन है और माजी में क्या करते रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात पर जो क्लियर ना हुआ, उसी अफसर को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
गंदम दरामद स्कैंडल रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए। 2023 का गंदम दरामद स्कैंडल। मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। किसानों को अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करना पड़ी। गंदम स्कैंडल पर मोहम्मद महमूद को मुअत्तल किया गया। 39 रुपया रेट मुकर्रर किया है, हमसे 2700-2800 रुपये भी ले रहे। गुजरांवाला के करीब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में मोहम्मद महमूद का नाम आया। नवंबर 2015 में मोहम्मद महमूद को बेज़ाब्तगियों पर नंदीपुर प्लांट के एमडी के ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद महमूद को अगस्त 2024 में सेक्रेटरी आईटी के ओहदे से भी बरतरफ किया गया। उन पर 76 अरब की नादहिंदा कंपनियों को गैर कानूनी माली फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। पिंडी रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने रिंग रोड के नक्शे में गैर कानूनी तब्दीली कराई। मोहम्मद महमूद पर कंसल्टेंट्स की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर बोलियों के इश्तिहार का भी इल्जाम था। पिम्स में पेश आया वाकया बहुत दिलखराश है। इसे सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही हालात बेहतर करने की जरूरत है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कोई दो राय नहीं, हमारे इदारों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। वाकया बहुत दिलखराश है, लेकिन इसको फिर सियासी रंग देना और किसी और तरफ ले जाना मेरा नहीं ख्याल है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को मजीद बेहतर होने की जरूरत है। सिर्फ सिंध नहीं, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हालात बेहतर करने। जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद, देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं। मेरे, आपके या किसी और के कहने से काम ऐसे नहीं होते। पीपल्स पार्टी का सिंध की तकसीम ना होने देने की करारदाद असेंबली में लाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हिदायत पर सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर की जाएगी। संजय साधवानी से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। बताइए क्या डिटेल सामने आ रही है संजय साधवानी? संजय, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो मैं बताएं ज़राए से मजीद क्या पता चल सका है? पीपल्स पार्टी का सिंध की तकसीम ना होने देने की करारदाद असेंबली में लाने का फैसला। ज़राए ने बताया कि चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सिंध असेंबली के आज के इजलास से पहले पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असेंबली को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। ज़राए पीपीपी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत भी हासिल है। संजय साधवानी, बताइए मजीद क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नारा लगा लिया है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का एक दफ़ा फिर सिंध असेंबली में सिंध की तकसीम नामंजूर की करारदाद मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनकी हिदायत पर सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया गया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपी सिंध असेंबली के अरकान का इजलास आज दोपहर 2 बजे सिंध असेंबली में होगा। पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में करारदाद को यकीनी तौर पर पास कराने की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद ये करारदाद सिंध असेंबली में आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ये तय किया गया है। पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक करेंगे सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर कराने के लिए मतलूबा अक्सरियत पीपल्स पार्टी को हासिल है। आराम से 2/3 अक्सरियत से ये करारदाद सिंध असेंबली से पास कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सिंध की जो तकसीम है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जिसकी करारदाद आज सिंध असेंबली के जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है पीपल्स पार्टी का, उसमें पेश की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि सिंध असेंबली से ये करारदाद कब पास कराई जाए। तो अब पीपल्स पार्टी ने हतमी तौर पर ये फैसला कर लिया है कि एक दफ़ा फिर सिंध असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम नामंजूर की करारदाद मंजूर करवाएगी। आपका शुक्रिया संजय तफसीलात के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कोयती वजीर दिफा की मुलाकात। कोयती चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी कोयती वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। कोयती वफ्द ने इलाकाई अमन पाक अफवाज के किरदार और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। पाक कोयत दिफाई ताउन इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया गया। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हड़ताल पुरअमन होगी, गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं कि हड़ताल कैसे की जाती है। लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करवाने निकले हैं। ताजिरों के पास जाएंगे, उन्हें कायल करेंगे। खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा। 3 सितंबर को जुमेरात के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर हड़ताल होगी। हड़ताल राब्ता करके करवाई जाती है। दुकानदारों के पास जाइए, ताजिरों के पास जाइए और कहिए कि हम जानते हैं कि आपका खर्चा भी पूरा नहीं होता, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क में होने वाली इस हड़ताल का साथ देंगे, अपने शटर को डाउन रखेंगे, तो वो दबाव बनेगा कि जिसके नतीजे में हुक्मरान
पीछे की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह और पूरी कौम को हक मिलेगा। बाज नौजवान तो खुद ही पहिया जाम करना शुरू कर देते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि पुरअमन तरीके से हड़ताल की जाए। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से कॉल देंगे और पूरी कौम इंशाअल्लाह लब्बैक कहेगी। कराची शारे फैसल पर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 20 अफराद को नामजद किया गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में शारे फैसल पर नर्सरी के मुकाम पर। इस मुकाम पर रोज़ाना रात को मीर रजा कत्ल केस पर नौजवानों की बड़ी तादाद एहतजाज करने आती थी और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करती थी। इस दौरान शारे फैसल के जो मरकज़ी ट्रैक हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें रोड बंद करने की दफात शामिल की गई हैं। इसमें 20 अफराद को नामजद और 70 से 80 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया है। पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि शारे फैसल ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ये फैसला किया गया है कि अब शारे फैसल को किसी को भी ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त नर्सरी के मुकाम पर ईस्ट जोन के मुख्तलिफ थानों की पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन एहलकारों को भी यहाँ पर इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। खैरपुर की कोट डेजी मीरवाह कैनाल में लोडर रिक्शा 4 बच्चों समेत डूब गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्चे की लाश पानी से निकाल ली। 3 बच्चों को तलाश किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद खोड़ो। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट डीजी में, जहां एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 4 बच्चे डूबकर जाँ बाग हो गए। बच्चे जो है 4 रिक्शा लोडर उस पर आ रहे थे, तेजी में जो है मीरवाह के नहर के जो लहरों के हवाले हो गए। इलाका मुकीम ने उन्होंने अपनी मदद आप तहत जो है एक लाश को ढूंढ निकाला है, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई भी रेस्क्यू कोई टीम नहीं पहुंची। अगर पहुंची भी है तो वो उतरने के लिए तैयार नहीं है, वो सुबह का इंतजार कर रही है। सिर्फ यहाँ पर जो इलाका मुकीम है वो मौजूद है। 4 बच्चे हमारे डूब गए हैं, एक हमारे को लाश मिली है। इंतजामिया अब सुबह का इंतजार करे, कोई भी हमारे से तावन नहीं कर रहे हैं। इधर तकरीबन सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इलाका मुकीम के जो गोताखोर हैं वो पानी में उतरे हुए हैं, वो लाशों की तलाश जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। जी, मुल्तान में घरेलू नाचाकी पर एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। थाना स्टील माड़ी के इलाके विहाड़ी रोड ग्रिड स्टेशन के करीब मुलजिम नईम ने ससुराली घर में दाखिल होकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने CCTV वीडियो हासिल करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। बक्कर में 12 साल की माजूर यतीम बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची की वालिदा ने अपने भतीजे पर इल्ज़ाम आयद किया है। बताया वारदात के बाद मुलजिम असलहा लहराते हुए फरार हो गया। बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस को दी गई दरख्वास्त में बच्ची की वालिदा ने बताया घर में अहले खाना मौजूद नहीं थे। इस दौरान आमिर भट्टी घर में दाखिल हुआ, बच्ची से ज्यादती की। वालिदा और भाई के घर पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस और आला मुलजिम को गिरफ्तार करके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएं। साहिवाल में खातून से ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के केस में नया मोड़ आ गया। थानेदार ने 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की। पुलिस हुकाम ने SHO को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि SHO थाना हड़प्पा इंस्पेक्टर माजिद अशफाक का मुदैया से गठजोड़ था। खातून ने मुलजिम शोएब अशरफ को साहिवाल बुलवाया। मुलजिम ने गाड़ी में मुबैना ज्यादती की। इसी दौरान पुलिस टीम ने मुलजिम को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। मुका के लिए रिश्वत मांगी गई। इससे कबल खातून ने शोएब अशरफ के खिलाफ ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया था। इंक्वायरी की गई तो थानेदार के खिलाफ शवाहिद मिल गए। DPO ने इंस्पेक्टर माजिद अशफाक को मुअत्तल करके मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में 5,000 रुपए चोरी के शुबे पर घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। बाअसर शहरी की बीवी और वालिदा ने 16 साला मुलाजमा का सर दीवार से टकराया। मालकिन ने कपड़े फाड़कर मोबाइल फोन पर नाजेबा वीडियो बनाई। जान बचाने के लिए छत से छलांग लगाने पर मुलाजमा अलीशा का जबड़ा और टांग टूट गई। सिविल अस्पताल में जेर इलाज मुलाजमा अलीशा ने मीडिया को बताया मालकिन आयशा और उसकी वालिदा को ने मिलकर बेरहमी से तशद्दुद किया। अलीशा के वालिद रमज़ान ने बताया मुलजिमान पहले बेटी का सिविल अस्पताल के सामने वाक़े निजी अस्पताल में इलाज कराते रहे। 6 घंटे बाद रात 11 बजे कॉल की। बच्ची की तबीयत ख़राब है। कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब से अपील है वाक़े का नोटिस लें। पिशावर CTD की मेरा कचौड़ी में कार्रवाई। 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। अदनान तारिक से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। कार्रवाई के बारे में मजीद आगाह कीजिए अदनान।
جی بالکل، کاؤنٹر ٹیررسم ڈپارٹمنٹ پشاور ریجن کی جو ہے وہ اہم کارروائی جو ہے میرا کچوڑی کے علاقے میں کی گئی۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ CTD حکام کے مطابق بتایا گیا کہ ہلاک دہشت گردوں کی قبضے سے 3 کلاشنکوف، 1 پستول، 1 دستی بم، 7 میگزین، متعدد کارتوس جو برآمد ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک کی شناخت جو ہے وہ سعید ولی ولد عبد الغنی سکنہ ننگہار افغانستان کے نام سے ہوئی، جس کے قبضے سے افغان مہاجر کا کارڈ بھی برآمد ہوا۔ سعید ولی افغانستان سے پاکستان دہشت گردی غرض سے جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا۔ دیگر فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کی تعاقب جاری تھا۔ کاؤنٹر ٹیررسم ڈپارٹمنٹ کا یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا۔ جی آپ کا شکریہ عدنان تفصیلات کے لیے۔ نیپال میں تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 390 ہو گئی۔ ملکی و غیر ملکی 644 سیاحوں سمیت 1000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ نیپال ٹورزم بورڈ کی تازہ رپورٹ کے مطابق لاپتہ سیاحوں میں 30 ممالک سے تعلق رکھنے والے 517 سیاح شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک پریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق امدادی ٹیمز اب تک 350 افراد کو فضائی راستے سے محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہیں۔ 7500 سیکیورٹی اہلکار امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔